नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। आम आदमी पर 7 अप्रैल से घरेलू खर्च का बोझ बढ़ गया है। केंद्र सरकार ने एलपीजी की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा कर दिया है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 553 रुपए हो गई है। केंद्र सरकार ने 7 अप्रैल को यह बड़ा फैसला लिया। घरेलू गैस की कीमतों में देश भर में बदलाव कर दिया गया है। अब से 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो जाएगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस बदलाव के बाद राजधानी दिल्ली में घरेलू एलपीजी 803 रुपए से बढ़कर 853 रुपए हो गई है। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से बढ़कर 550 रुपए कर दी गई है। आपको बता दें कि घरेलू गैस की कीमतों में अगस्त 2024 के बाद यह पहला बदलाव है। इससे पहले 1 अप्रैल को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी की कीमतों को 41 रुपए घटा दिया था। दिल्ली में अभी कमर्शियल एलपीजी की कीमत 1762 रुपए है। वहीं केंद्र सरकार ने रसोई वाला एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए महंगा कर दिया है, जिसे लेकर विपक्ष हमलावर है। हालांकि सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ाए हैं, इसका जवाब भी दे दिया है। न्यूज 18 की राइजिंग भारत समिट 2025 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल और एलपीजी की कीमत के बारे में बात की। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम और एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बताया। सर, तेल के दाम गिर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रूड, बट आपने एलपीजी के दाम बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए। मार्केट्स आर क्रैशिंग बट ऑयल प्राइसेस, एलपीजी प्राइसेस आर राइजिंग. Why, sir? Why? Anand, I've known you for a long time, but I would have been surprised if you hadn't asked me the question. But a little surprised that after an hour-long press conference yesterday, you still asked me the question. But since you asked it, I owe it to you and your distinguished invitees Let's to talk explain. LPG. We'll talk LPG first. No, Ji. LPG. Let's go with LPG first. We provide LPG first number of connections. It was 14 crores in 2014. Today is 33 crores. If one connection is for one household, so you multiply and each household has 4 people, we have covered the entire population of India and more. You have 100% saturation. We provide the world's cheapest cooking gas. For an Ujjwala beneficiary, it comes to 5 rupees a day. Okay? And for a non-beneficiary, it comes to 14 rupees a day. For every cylinder that is sold, we incur a loss of 500 rupees per Ujjwala beneficiary. 500 rupees. So there was a context in which it had to be done. We were in a particularly difficult environment. That is the environment in which we were providing 3 meals of dry ration in a day during the lockdown and pandemic. It's still continuing. But today what happened as a result of the 503 rupees Ujjwala cylinder is that the companies which were supplying that, they have incurred a loss, and it's a cumulative loss of something like 41,000 crores. Now, I'm a student of subsidies. The money has to come from somewhere. It doesn't grow on trees, as a former Prime Minister said. So what we've done is something very basic. The price of a cylinder has been raised by 50 rupees only, okay? Which means the cost to a family of 4, which is using those figures, it's marginal, all right? But we have also raised the excise duty on petrol and diesel by 2 rupees. Now, there was a big halla yesterday when they saw the finance ministry notification. We clarified the dam at the petrol retail point will not go up. It will remain the same. What we'll do is we'll collect some resources which will help, because we are committed to those oil companies. When they last time they incurred a loss of 28,000 crores on gas, we compensated them by 22,000 crores. So this is to do that. Now you come to the second part of your question. Oil prices are coming down. Wonderful news. You know something?
We spend something like $150 billion a year on oil imports. If the oil price is down 20%, which means we save 30% overall, $30 billion. जी That is the value of our exports. So it's good news. But all things good, my friend, have to be sustained. If the oil price today is 61.89 yesterday, I don't know what it is as of this morning because I've been in functions like this. Today we are carrying 45 days of reserves. The price in beginning January for oil was $83 a barrel. And if I take the average of the 45 days, it comes to something like $75 a barrel. Now, if the price goes even from 60 to 65 or more, yes, the oil marketing companies will have headroom to bring prices down. But it's a deregulated sector. I can't keep telling them, aja petrol or diesel pe bhi under recovery kar lo or gas pe bhi kar lo. But they are called very responsible corporate citizen. They're very good people. They helped us out on gas. We are compensating them. And petrol and diesel, let your red attire of the day signal that if the trend remains like this, yes, they will bring the prices down. उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब और ग्रामीण परिवारों को जोड़ा गया, लेकिन इस योजना को लागू करने वाली कंपनियों को घाटा उठाना पड़ा। फिर भी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि गरीब तक एलपीजी पहुंचे और खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध हो। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत में एलपीजी कनेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। 2014 में जहां 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन थे, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 31 करोड़ हो गई है। देश में आज दुनिया की सबसे सस्ती रसोई गैस मिल रही है। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी की कीमत सिर्फ 5 रुपए प्रतिदिन पड़ती है, जबकि गैर उज्ज्वला उपभोक्ताओं के लिए 14 रुपए प्रतिदिन है। जिसे प्रत्येक सिलेंडर की बिक्री होती है, उसके लिए हमें प्रति उज्ज्वला लाभार्थी 500 रुपए का नुकसान होता है। इसलिए यह फैसला लेना पड़ा। वहीं उन्होंने कोरोना काल को याद किया और कहा कि हम विशेष रूप से कठिन वातावरण में थे। वह ऐसा वातावरण था जिसमें हम लॉकडाउन के दौरान एक दिन में 3 बार राशन उपलब्ध करा रहे थे। आज 503 रुपए वाले उज्ज्वला योजना सिलेंडर के कारण जो हुआ वह यह है कि जिन कंपनियों ने इसे लागू करने में समर्थन दिया था उनको घाटा हुआ और यह कुल मिलाकर लगभग 41,338 करोड़ रुपए का घाटा है। वहीं इसको लेकर विपक्ष भी निशाना साध रहा है। देश में ईंधन की कीमतों को लेकर विपक्ष दलों पर निशाना साधते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भाजपा और गैर भाजपा शासित राज्यों के बीच ईंधन की कीमतों में भारी अंतर है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि भाजपा शासित और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के बीच पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 से 12 रुपए प्रति लीटर का अंतर है। विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में पेट्रोल और डीजल महंगा है। अब बात किस राज्य में कितने कीमत की अंतर है, ये भी देख लेते हैं। दिल्ली में अभी तक गैस सिलेंडर 803 रुपए का था, जो अब बढ़कर 853 रुपए हो जाएगा। राजधानी मुंबई में घरेलू कुकिंग गैस की कीमत 802.50 रुपए बढ़कर 852.50 रुपए हो जाएंगी। वहीं चेन्नई में जो गैस अभी तक 818.50 रुपए की थी, अब वह 868.50 रुपए की हो जाएंगी। कैसे तय होती है ये कीमत, ये भी जान लेते हैं। भारत में एलपीजी सिलेंडर की कीमत हर महीने तय की जाती है और इसका सीधा संबंध अंतर्राष्ट्रीय बाजार से होता है, क्योंकि भारत गैस इंपोर्ट करता है। अगर विदेश में कीमत बढ़ती है या डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है तो सिलेंडर महंगा हो जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, रिफाइनिंग, टैक्स और कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन को जोड़कर फाइनल कीमत निकाली जाती है। केंद्र सरकार उज्ज्वला जैसी स्कीम के तहत कुछ ग्राहकों को सब्सिडी भी देता है, जिससे उन्हें सस्ता सिलेंडर मिलता है। घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों की कीमत भी अलग अलग होती है। हर महीने की 1 तारीख को सरकारी तेल कंपनी रिव्यू करके नई कीमत जारी करती है।
जिससे ये पता चलता है कि हमारे भारत में सिलेंडर के दाम कितने घट रहे हैं, कितना बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।